Welcome to the class. Hope all of you have enjoyed your homework which I have shared with you all. And there were some different questions या जहाँ पर थोड़ा सा आपको confusion हुआ. ये questions कुछ exemplar से थे. Like one of the question was ये ऐसा करके कुछ rectangular image था. Yes. Yes, sir. I have doubt in that question only. What are the order of what is the order of rotation? What is the order of rotation here? Sir, 2. Anyone just speak. Will anybody speak? Venkatesh should try to speak it up. The order is? Sir, the order is 2. The order is 2. Okay. Harsh, speak again. Sir, your order, the order is 2. The order is 2 here, है ना? इन लोगों को लगा कि ऑर्डर 1 होगा, बट इसको जब आप रोटेट करेंगे तो अगेन जैसा नॉर्मल रेक्टेंगल में मिलता है वही है ना? Sir, I too did 1 only. हाँ, many of I checked your answers. जैसे कि ये रूम पेंटागन टाइप जो फिगर था, हेक्सागन टाइप है ना, 1 2 3 ऐसा फिगर था ना. Yes, sir. इसमें क्या था ऑर्डर ऑफ रोटेशन? Sir, 6. हाँ, the correct answer is 6 here. So many times हमें लगता है कि टॉपिक सिंपल है, पर ऐसा होता नहीं है ना. That's why we practice more and more. Sir, I have doubt in 22nd question. 22nd. The measure of an angle which is 4 times its supplement. एक ऐसे एंगल का मेजर पता करना है जो कितना है 4 times of its supplement. So if a angle is x, so 4 times of its supplement, this is equals to how much? 4 times. चलो x का supplement क्या होगा भाई? What is the supplement of x? Anyone? सप्लीमेंट ऑफ x. a का सप्लीमेंट क्या होता है? a प्लस b दोनों का सम 180 होता है. सो द सप्लीमेंट ऑफ a इज 180 माइनस b. यस, 180 माइनस b. सो इफ a इज x, सप्लीमेंट विल बी Sir, I was having doubt in 18th question. Wait a minute, this is 22 question. Answer me, what is the supplement of x? x का supplement क्या होगा? चलो ए और बी भी ले लेते हैं, ठीक है. ए और बी दो एंगल से है ना, एंगल ए एंगल बी. अभी ये क्या कह रहे हैं कि जो एंगल ए है वो 4 टाइम्स है, B. 4 टाइम्स ऑफ बी. फाइन. एंड व्हाट इज द सम ऑफ ए एंड बी? 180. 180. तो आप इसको अब ओरल भी कर सकते हैं, या फिर आप रख दीजिए ए की प्लेस पे क्या रख देंगे आप? 4b. एंड b इज ऑलरेडी देयर. हाँ, 4 and 1 180 divided by 5. how much? 144 degree. 1 44. 180 divided by 5.
have one doubt. Wait a minute, let me finish this question. 36. 36. So the angle which is Sir, 4 but times. I have but in that 144 is the answer. Why the answer is 144? Because they are asking the angle which is 4 times. तो हमसे एंगल A पूछ रहे हैं, है ना? अभी हमने B निकाला, B का वैल्यू कितना आ गया हमारा 36, है ना? अभी जो A है वो इसका 4 टाइम्स है, तो यहाँ रख दीजिए 4 टाइम्स ऑफ Okay, sir. One more time we should see. There are two angles. They are supplementary angle. दोनों का सम 180 होता है और दोनों में क्या रिलेशन है? One is 4 times of other. एक एंगल दूसरे का 4 टाइम्स है. तो अगर एक एंगल है A, दूसरा हो गया 4 times of B. Suppose if it is B, one of the angle is B, another is 4B. You can do this way also. If A is X, B is equals to 4 times of X. Okay? और किसी भी एक को Sir, in the previous. yes. Sir, in the previous one, where there was 4x, so you did 180 divided by 5. So why you did like that? You can see here 4 plus 1 is 5. Now multiply क्या होगा अगम्या? अगम्या? Divide. Divide, yes. So 180 divided by 5. This. Okay. Fine. Sir, I have asked my doubt in the chat. Which question? Wait a minute. An angle is equals to 5 times its complement. Okay, ये क्वेश्चन भी था क्या हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 24 अभी डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 ऋतुजा बता देंगी. एलाइस आल्सो डिड. I checked your homeworks. चलिए, one question from Mahalakshmi to all of you. An angle is 5 times its complement. An angle is 5 times its complement. चलिए फाइंड करिए फटाफट से. Sir, this one only I not understood. नहीं, अभी हमने एक क्वेश्चन किया ना ऐसा. अब आप ट्राई करिए जरा. रखिए, एक को x रख लीजिए और दूसरे को क्या रखेंगे? 5 टाइम्स के लिए क्या रखेंगे अगम्या? 5x. वेरी गुड. तो एंगल ए को लिख लो x, एंगल बी को लिख लो 5x. और ये कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? Means it should be 90 degrees. वेरी गुड, हो गया. इनका सम हो गया 90. तो 5 plus 1 6x is equals to 90. X is equals to 90 divided by 6. How much? Middle answer. Yes. Sir 30. Sir 15. वेरी गुड. तो वो एंगल जो 5 टाइम्स होगा वो क्या होगा? 15. 5. An angle which is 5 times its complement is 75. आपको करेक्ट ऑप्शन क्या लिखना है? 75. Sir, हाँ. sir, there can be one more method also. Yeah. Speak. Sir, x equals to 5 into 90 minus x. So x equals to 450 minus 5x. And 6x equals. Wait a minute. Repeat. Okay. Sir, x equals to 5 into 90 minus x. X is And equals to 5 times of
90 minus x. Yes. And x equals to Sir? 450 हाँ, minus 5x. एक मिनट सभी को पहले ये समझ में आया? संतोष, यू ट्राई टू एक्सप्लेन इट मोर। देखो लिखा आपने, So what? why you written in this way, explain to your friends. Sir, हाँ, sir, this is बोलिए। because 5 times and complement, it's complement, so it is 90 degree. And Very good. for because there then the complement of it equals to 90 minus x, no sir. So that's why 5 times its complement. So 5 into 90 minus x. An angle is 5 times of its complement. इस का मतलब हमको पता है इक्वल होता है ना, जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो एंगल इज x इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट अगर है तो 90 में से x को माइनस कर दें। तो इस तरह से भी हम कर सकते थे। फाइन, आई वाज ट्राइंग टू डू इन दिस वे इन द सप्लीमेंट वाला जो क्वेश्चन था अभी आपका। यस, तो ये हो जाएगा 450 minus 5x. Sir, how Now 5x? minus 5x become 5x. minus plus. Yes, ये हो जाएगा आपका 6x divided by 450. Sir, I have doubt. 450 will be, yes, P. So how did it become 450 minus 5x? 450 minus ये this 5 we have to multiply ना, distributive property a into b plus c। अगर कोई नंबर बाहर है तो उसका दोनों पे इंटू करेंगे, 90 में भी इंटू करेंगे, x में भी इंटू करेंगे। सर? ठीक है, हाँ जी, एक मिनट, ये कितना आ गया? 6 7 जा 42, 3 बचेगा 75. Sir, 1 minute. हाँ जी, Sir, if you multiply 5 from x, it will be what number? 5x। Yes, sir. 5 into x 5x, और कुछ नहीं होगा उसका, है ना, वो एक वेरिएबल बन जाएगा। Okay, sir. दिन में थोड़ा रेस्ट भी किया करो आप लोग भी, थोड़ा कैसे सब क्लासेस करते हैं कंटिन्यू। उस दिन भी हमने एक्सरसाइज किया था कुछ कुछ, है ना, ऐसा कुछ लेकर के आओ भाई, अच्छा रिदमिक एक्सरसाइज सबके लिए। अंदर 90 डिवाइड बाय 6, मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या हो गया? डिवाइड। किसी को पूछना है नहीं पूछना? 32 स्टूडेंट अभी थे यहाँ, जो नहीं बोलेंगे वो नहीं सीखेंगे, ये बात एकदम पक्की है। आप सभी सब्जेक्ट में, वेदर इट इज हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, आप बोलिए, जब आप बोलते हैं तभी आप सीख रहे हैं। हाँ सर, can we do like this? 5 into b plus b is equal to 90. 5 into b plus b is equal to 90। हाँ हाँ, यस, वही x रखा ना हमने, आप भी रख सकते हैं, नो वरी, सेम ऑनली ना, वेरिएबल आप कुछ भी रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन? एन एंगल इज 60 डिग्री Please write it some down. We can't see it. कैमरा थोड़ा ऊपर कर दें, कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया। Okay, sir. Angle is 60 degree. less than 2 times of its supplement। चलिए बताइए, who will explain? Raise your hand fast। एक एंगल, Can I tell? हाँ यस, नो वेट अ मिनट संतोष, आपने एक आंसर बताया ना अभी, और कौन कौन आंसर देना चाहता है? हु विल गिव? Elias, Rutuja, I checked your answers, you both have done. Okay, 3 raise hands I have, fine. Harsh, okay, बाकी सब भी ट्राई करिए जरा। आई एम गिविंग यू 1-2 minutes टाइम, कीप योर वीडियोस ऑन, दिखना चाहिए सभी ट्राई कर रहे हैं। All of you tried? Ishan, how to do it, Ishan? Sir, first we have to create an equation like something. हाँ बनाइए, एक पहले दोनों का रिलेशन देखिए। एक एंगल जो है 60 डिग्री लेस देन 2 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। अभी वही चीज है, दो एंगल है ए और बी,
है ना, एक ओवर ले लिया x, तो b क्या होगा? 2x. 2x. और क्या करना पड़ेगा? -60. यस, हो गया क्वेश्चन, हो गया। Sir, I have solved. Sir, मैं 10. हाँ यस, X plus 2x minus 60 is equals to 180. Then 3x is equals to, then minus sign will change into plus sign. Then 3x is equals to 240. Then x is equal to 240 by 3. Then answer will be 80. यस। तो देखो सिंपल इक्वेशन हमने पढ़ा तो यहाँ पे काम आ रहा है ना हमको, है ना? ईरा, आर यू गेटिंग इट नाउ? ईरा, समझ में आ रहा है अब सभी को? सृष्टि, जुम्ना के कुछ पूछना है बेटा? पुष्पम, जयंत, अनुष्का, राजकुमार, ऐसे सब मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर सब एकदम गायब हो जाते हैं बिल्कुल। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा कि आप एक्टिव रहिए, कम से कम अपना वीडियो ऑन रखिए, इंटरेक्शन करिए। आई कैन एबल टू सी यू कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। Sir, I have a doubt. श्रुति, आपका नाम लेते हैं उसके बाद भी आप इतने डिसोबीडियंट है, कुछ स्टूडेंट दे कांट आंसर। श्रुति, कैन यू हियर मी? श्रुति, देखो भाई, श्रुति जो है इसका मतलब कैमरा बस ऐसी क्लास लगा के गायब हो गई है। शी इज नॉट। Sir, I have a doubt. हाँ, आस्क फास्ट। In the how we have to find that how many rotational symmetry? Very good. So who will answer Adamya's question? हाँ, Elias, you tell your neighbor how to do. Okay, Ishan is speaking something. Sir, we have to do the cutouts, and when you will make the cutouts and you will try to spin it and rotate it, then you will understand better. And when there is some shape, then you will understand how it is going to be rotated and what will be its order of rotation. Okay, but still थोड़ा सा एग्जांपल देके बात करते हैं ना अपन। जैसे कि सपोज क्या ले लें, एक ट्रायंगल की बात करें। What will be the order here, Elias? 3. If it This is is equilateral triangle. okay, but I don't think it is equilateral. Do you think it is equilateral? No, na? So it's isomorphous. No, sir, its base is really long Yes, sir, and it is isosceles. It's Isomorphous. So does it have any symmetry? It has one One-line symmetry. through the middle. One line of symmetry and one rotational symmetry. या तो भैया ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है कि जब हम रोटेट करेंगे इसको तो आप ऐसा या तो ड्रॉ करके रोटेट कर सकते हैं, है ना? जैसे आपको बोला गया है कि सपोज सिंपली हम जैसे स्क्वायर को देखते हैं तो स्क्वायर में क्या है, आप उसको अगर रोटेट करेंगे देन आल्सो यू विल गेट द सेम शेप ओनली 4 टाइम्स। क्या? बट रेक्टेंगल में कैसा हो जाता है आपका 1, ये वर्टिकल हो गया अभी इस तरह से 2 and then 3, है ना? तो जब आपने एक बार इसको रोटेट किया so 1 and 2, what is the order here, Jayant? Sir, 2. Yeah, here the order is 2 because we rotate 2 times and we got same. So this way for different figures we should try to understand their properties, है ना? Then we can, जैसे अलाइज ने बताया आप कटआउट्स के थ्रू करिए, रोटेट करके हमने किया प्रीवियस वीक। अगम्या, will you do it?
So I can understand. So I can understand linear pair. लीनियर पेयर, फाइन। तो चलिए अब हमारे पास एक इसमें टॉपिक और नेक्स्ट क्या आ रहा है आफ्टर सप्लीमेंट्री Sir, एंगल्स। can you first explain adjacent angles? Why I should explain what you have read? Tell me fast about adjacent angles. It has a common vertex, it has a Hmm. common arm, and the non-common arms are on either side of the common arm. I read it and I memorized it, but I'm not understanding in real life how it is working. अरे why से अगेन लुक हियर। सबसे पहले तो अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री देखा है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में क्या हो रहा है कि दो डिफरेंट एंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे अगर सप्लीमेंट्री में बोलता हूं कि चलो ये है भाई 60 और ये हो गया आपका 120, है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, पर क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं? आर दे एडजेसेंट एंगल, यस और नो? सो हम अलाइस repeat your first point. What is the first point? It has a common vertex. ओके, तो दोनों एंगल्स के लिए अगर दो एंगल है, ठीक है, रिमेंबर यहाँ हम अब पेयर की बात कर रहे हैं, तो दो एंगल्स की अगर एक कॉमन वर्टेक्स होती है, तो चलिए ऐसा करते हैं कि दोनों एंगल्स के लिए एक ही कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है ना। तो अभी हो गया कॉमन वर्टेक्स ओ। सेकंड थिंग, It has a common arm. okay, so O, this is A, B, C. What is Sir, the it is common- buffering in between. Where? No, I just switched the camera again. It has a common arm. So what is the common arm here? Say. Sir, C. A. C. All of you try first. Speak everybody. A. C. Common arm. संतोष, बाकी सबको क्या लिख रहा है? श्रीवत्स कुलकर्णी, OC. OC, yes. OC is the common arm. अगर आप सब देख रहे हैं, ये जो OC है, एक्चुअल में ये पहला एंगल है AOC, है ना। देयर आर टू एंगल्स, वन एंगल इज एंगल AOC, अनदर एंगल इज BOC। BOC, तो यहाँ पर AOC में भी जो है ये Yes. आएगा, है ना। AOC, BOC, what is common here? OC. It has a common arm. It has a common arm, yes. तो ये कॉमन आर्म का कंसेप्ट हमको समझ में आना चाहिए। अभी हम और एक एग्जांपल देखेंगे कि नॉन कॉमन आर्म कैसे हो सकती है। थर्ड वन, Its non-common arms are on either side of the common arm. OA and OB. Sir, BOA. OA and OB. OA and OB, yes, OA and OB, these are the two non-common arms. They are on the opposite side of the common arm. Fine. Now everybody, those who note down in your notebook, show me your notebook. चलिए सभी अपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिए एडजेसेंट एंगल्स की थ्री प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, non-common arm are on opposite side. थोड़ा आवाज हो रहा है बेटा अभी। Sir, wait.
Sir, you are in mute. Sir, wait. Sir, you are on mute. Sir, I have a doubt. Sir, what is meant by arm? Sir, you are Sir, in you are mute. on mute. Mute. Sir, you are mute. Oh, wait a minute. Yes, fine. So OA, OB, OC, these are the arms, the sides or the rays through which angle is made, है ना, जिनसे हम Okay. एंगल बनाते हैं, वो हमारी आर्म्स होती हैं। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइएगा मुझे। Arms can be also known as rays. हाँ, आर्म्स कैन आल्सो बी नोन एज रेज, यस। चलिए अब मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूँ। So I can understand linear pairs. हाँ, एक मिनट बेटा, एडिशन के बाद हम लीनियर पेयर पे आ रहे हैं। हाँ, जस्ट 1 मिनट। देखिए एक एंगल है एओबी, ठीक है, और एंगल एओबी, एंगल एओबी कौन सा है? ये कंप्लीट एंगल है ना, एओ, ये बी तक जा रहा है, ठीक है, और एक एंगल है एओसी। चलिए इन दोनों की मुझे कॉमन आर्म बताइए जल्दी से। OC. नहीं, OC. रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। AO. AO. Common. O. OB. AO. O. O. जो दोनों में आ रही है, OB. एओबी, एओसी, ये यहां तक है। इन दोनों में कॉमन आर्म है ओए, है ना। Sir, how? देखिए ना, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, एओबी में भी आएगा। जब ए से हम बी तक जा रहे हैं तो ये हो गया ए ओ बी, ठीक है। उसी तरह से दूसरा एंगल क्या है? ए ओ सी। So what is the common arm? Sir, but common Sir, is it can be ONC can be also common. OA. Sir, Yes, it can be BOC also, no? BOC। नहीं बेटा, देखो ना यहाँ पर C जो आर्म्स also. की बात कर रहा हूँ, देखो OA OB, इसमें क्या है? OA OC। So it can also be COB. COB, नहीं नहीं नहीं, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? देखिए पहला वाला एंगल जो है ना, इसको मैं आपको सेपरेट ड्रॉ करता हूँ। ये दोनों एंगल मिले हुए हैं, ये है पहला एंगल ए ओ। फाइन, अभी इसी में से एक दूसरा एंगल हमने निकाला, तो अगर दोनों को अलग अलग ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा? ये, ठीक है। Sir, here there are two angles. हाँ, देयर आर टू एंगल, एक्चुअली देयर आर 3 एंगल्स, है ना, वहां पे 3 एंगल है। तो हम जो बड़ा वाला एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल, एक ऑब्ट्यूज और एक एक्यूट की बात कर रहे हैं, तो दोनों में ओए कॉमन है। अब ओए कॉमन है तो ओए जो है वो, जो नॉन कॉमन आर्म्स है, क्या वो अपोजिट साइड है? व्हाट आर द नॉन कॉमन आर्म्स? ओबी एंड ओसी, है ना। अब ओबी और ओसी जो है वो दोनों सेम साइड पे होगी। जो थर्ड पॉइंट था ना अभी हमारा, अलाइज वाज टेलिंग द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन अपोजिट साइड। जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं वो अपोजिट साइड में होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया? कॉमन आर्म तो ये है, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो दोनों सेम साइड पे होगी। सो दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट और नॉट?
But sir, OC is coming in two angles, COA and BOC. But I am not talking about BOC, na. That's what I am asking about AOB and AOC. Okay. Yes, sir. Sir, it is always like followed that the non-common arms will be only on the opposite side and not on the same side. Yes. Every time the non-common arms जो common नहीं है वो opposite side में ही होना चाहिए. ठीक है? Clear हुआ क्या आप सबको? Sir, here the common vertex will be O only. हाँ, कॉमन वर्टेक्स O है, कॉमन आर्म OA थी, पर जो नॉन कॉमन आर्म्स थी OB और OC, वो दोनों जो है वो OA के एक तरफ आ गई थी, है ना, वन साइड. उनको अपोजिट साइड होना चाहिए था. ठीक है ना? Sir, in the adjacent angle, as there are B and A on the opposite. Repeat. Sir, if the adjacent angle as there are two B and A, if both are at opposite sides to C. राइट इन योर चैट बॉक्स बेटा. 4:30 हो गया है. चैट बॉक्स में लिख दिए जल्दी से. टाइम सर मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है. बस अब एक मिनट जस्ट 1 मिनट. टू एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना, दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 होता है, वी कॉल देम लीनियर पेयर. ठीक है? दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स होंगे. अभी हमको समझ गया है कि जब नॉन कॉमन आर्म आर ऑन अपोजिट साइड. ठीक है? जैसे ये हो गया, तो ये दोनों एंगल AOB और AOC एडजेसेंट भी है और दोनों का सम 180 है. सो दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर. सो व्हाट इज लीनियर पेयर? रिपीट विथ मी. टू, रिपीट, टू adjacent angles Angle making 180 degree making 180 degree. called 180 degree. Called pair. Very good. So thank you everyone. Remaining will study tomorrow. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.